Good morning, students. Welcome to your online classes. Today we are going to start our supplementary book Moments, Chapter 1, The Lost Child. This chapter is written by Mulk Raj Anand. So before starting chapter, I should clear it that a child is going to visit a fair in this chapter with his parents. तो इस चैप्टर में चाइल्ड फेयर घूमने मेला घूमने जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ. So let's start with the reading. It was the festival of spring from the wintry shades of narrow lanes, and allies emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, and being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So here, यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है रास्ते पे जब वो फेयर पे जा रहे थे तो वो स्प्रिंग सीज़न चल रहा था, हल्की हवाएं चल रही थी सर्दियों के जाने की, और समथिंग द एटमॉस्फेयर वाज सो गुड. और भी लोग विज़िट करने जा रहे थे, कुछ वॉक करके जा रहे थे, कुछ हॉर्सेस पे जा रहे थे, कुछ बैम्बू को पकड़े हुए थे, कुछ बुलक कार्ट्स में बैठ के जा रहे थे. सडनली एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के लेग्स के बीच में से जाता हंसते हंसते with full of joy. Now let's read the second paragraph. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys, as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in her eyes. I want that toy, he pleaded. So before explaining this paragraph, some meanings are compulsory to explain. Lagged मतलब पीछे रह जाना, fascinated मतलब attract हो जाना, hurried मतलब भागना, obedient मतलब आज्ञाकारी होना, receding means पीछे. Now I should explain the paragraph. तो पेरेंट जैसे बच्चा जा रहा था खुशी खुशी हंसते हंसते आगे, तो उसके पेरेंट्स ने उसको कॉल किया कम चाइल्ड कम, क्योंकि वो पीछे रह गया था. क्यों रह गया था पीछे? क्योंकि वो टॉयज़ से अट्रैक्ट हो गया था और टॉयज़ की शॉप पे खड़ा हो गया था. पर पेरेंट्स के कॉल करने पर वो तेज़ी से भागा और अपने फादर और मदर के साथ आ गया, पर स्टिल उसकी आंखें उसी पीछे छूटे हुए टॉयज़ पे थी. सो एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और ऐसे करके उसने काफ़ी सारे उसके मन में डिज़ायर थी कि वह टॉय खरीदे, इच्छा थी कि मैं टॉय खरीदूँ. बट हिज फादर विद अ बोल्ड वॉइस सेड नो, क्लियर नो, रिफ्यूज़ल मतलब मना कर दिया. बट ही प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar trend way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it is swept across miles and miles of even land. सो आफ्टर रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसके पापा ने उसे मना कर दिया टॉयज़ के लिए, और रेड आइट देखा. रेड आइट मीन्स गुस्से से देखा और मना कर दिया. उसकी मम्मा बहुत अच्छी थी, उसने उन्हें बहुत प्यार से कहा और कहा मेरी फिंगर को पकड़ के चलो, और कहा देखो क्या है हमारे आगे, मस्टर्ड फील्ड्स हैं. राइट, मस्टर्ड फील्ड्स मतलब मस्टर्ड के क्रॉप्स उगे हुए हैं जो कि गोल्ड की तरह दिख रहे हैं क्योंकि उनका येलो कलर होता है, और काफ़ी सारा लैंड मस्टर्ड फील्ड से कवर था. तो ये उनका पूरा वे डिस्कस किया जा रहा है कि उनको ड्यूरिंग विजिटिंग द फेयर व्हाट दे गेट टू सी, जाते जाते उन्हें रास्ते पे क्या क्या चीज़ें दिखी, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. सो फर्स्ट ही सीन द टॉयज़, सेकेंड ही सीन द मस्टर्ड फील्ड. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ टू नो कि उसने और क्या क्या चीज़ें देखी. A group of dragonflies were bustling about on her gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The
the child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." So here अगेन सब मीनिंग्स को हमको डिस्कस करना पड़ेगा. बस्टलिंग मीन्स काफ़ी सारे इकट्ठे जब उड़ने लगते हैं, राइट. गर्डी मीन्स काफ़ी डार्क, राइट. एंड कॉशनरी मीन्स अलर्ट कॉल देना. ओके, तो लास्ट उसने क्या देखा था, मस्टर्ड फील्ड देखी थी. फिर उसने बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज देखी. ड्रैगन फ्लाइज क्या होती है, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि गोल्डन कलर के होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं. तो चाइल्ड अट्रैक्ट हो गया और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था. काफ़ी सारी बटरफ्लाइज भी थी वहाँ पर. तो चाइल्ड उनके पीछे पीछे भाग रहा था उनके विंग्स को पकड़ने के लिए, पर वो वापस से फ्लटर हो जाती. फ्लटर मीन्स उड़ जा रही थी. एक बार उसने बिल्कुल अपने हाथ में पकड़ ही लिया था, तब उसकी मम्मा ने उसे कॉल किया, "हे कम चाइल्ड कम, अब हमें फुटपाथ पे आना है." सो ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. Attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब एज अ आइडियल बच्चे की तरह जब उसकी मम्मा ने उसे कॉल किया तो वापस आया और उनके साथ चलने लगा फुटपाथ पे. फिर उसे और इंसेक्ट्स दिखे, वॉर्म्स दिखे फुटपाथ पे. फिर वो उनको पकड़ने के पीछे पीछे भाग रहा था. और फिर सनलाइट भी बहुत अच्छी आ रही थी, वो उसे भी इंजॉय कर रहा था. ओके, फिर देन अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ, "कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them." सो फिर से पेरेंट्स ने कॉल किया, "कम चाइल्ड कम", और फिर वो शेडेड जगह पे चले गए, वेल के एज पे, कुएं के पास में चले गए. फिर वो उनके पास भागा भागा आ रहा था. सो नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू क्लास.